All right, we are live. Hello, and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. Today is 2nd of May, a lovely Friday afternoon. At least the weather is pretty good in Delhi NCR. I don't know about you guys. There was a big storm last night and raining. It was raining in the morning, but now the weather is pretty pleasant, so I'm a little happy about that. Good afternoon to all of you. Please let me know in the chat box if you guys have joined. Adrija is here. Good afternoon. Pranchi is here. Good afternoon. Nirali is here. Arya is here. Very good afternoon to all of you. Navjot is here. Okay. ठीक है. Lovely. Let's look at the agenda for the day and then we'll start our discussion. आज हमारा discussion थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम because today is Friday and Friday को हम करते हैं menti quiz. And आज का menti quiz as discussed yesterday is on modern history. So 15 questions, some easy, some moderate, some difficult, but a fun quiz regardless, which we'll do after we discuss these three topics. So first topic is around Ukraine's minerals, and US has got access to Ukraine's minerals now. So there's an article around that which we'll discuss. Then the second article is around US sharing maritime security related data with us and technologies with us as part of the IPMDA, Indo-Pacific Maritime Related Agreement, which was, you could say, a culmination of the Quad group. And this agreement to share maritime data between the Quad members was signed somewhere back in 2022. So we'll have a detailed discussion all around that. Then the third is an editorial article which talks about a provision method which is called the private member bill, where MPs, which are member of parliaments, can bring up certain bills in the parliament and then the parliament can debate on it and then it can become a law. But it has not been utilized to the greatest extent in the recent times for the last few decades, and that is what the debate is about. So we'll discuss what is a private member bill, how does it operate, how many private member bills have come up in the parliament, how many were passed, and what is the impact of this. And after that, we'll be doing our vocabulary for the day, the three new words, and then we will do our Menti quiz for the week. ठीक है, ट्यूसडे को भी कर रहे हैं हम आजकल मेंटी क्विज, सो इट्स नाउ ट्यूसडे एवरी फ्राइडे in the Hindu analysis class. So if you are not aware of that, now you know. Okay, let's start a discussion by looking at the newspaper. We'll see if we have any other articles as well which we can discuss. I can see new people in the chat box as well. Good afternoon, Manat, Niranjan, Rekha. ठीक है, Priyanshi Singh, Mumbai is boiling in heat. I hope इंद्र देवता आप पे भी मेहरबान हो एंड बारिश जो है वहां तक भी पहुंच जाए. आज टर्नआउट थोड़ा सा कम है सरप्राइजिंगली. Is there a reason to it? Why do we have a low turnout today? Surprising this is. चलो ठीक है. I'm hoping people would join us midway. We'll start regardless. So I hope you all can see the newspaper on your screen now. No, you cannot yet because अभी मैंने शेयर नहीं किया है. अब कर दिया मैंने शेयर. चलो देखते हैं आज का डिस्कशन क्या क्या है. India gets US support in fight against terrorism. Now, this is obviously in context with the Pahalgam incident. We all know the Pahalgam terror attack, which happened on 22nd of April in Jammu and Kashmir, the Baisaran Valley to be specific, which obviously escalated tensions between India and Pakistan. There are a lot of discussions around cross-border terrorism through multiple countries, and if you look at India's position and response with regards to US, so our Defense Minister Rajnath Singh ji held a phone call with the US Defense Secretary, whose name is Pete Hegseth, Pethegseth, Hegseth, regarding the attack, and he blamed Pakistan for it and said that Pakistan has had a history of supporting terrorism, training terrorists, funding terrorist organizations, and he urged the international community that they should explicitly and unequivocally condemn terrorism and their sponsors as well. He said that India would have its right to respond to such attacks and we have a commitment towards counter-terrorism. सामने से US की तरफ से we got some support. Some statements were diplomatic in nature, some were supportive to India, but no explicit support for Pakistan in this context. So the US Defense Secretary, which I was just telling you about, whose name is Pete Hegseth, he said that India
has complete solidarity from America, and we would completely support India's right of self-defense. But recently, we also saw a statement where the US Secretary of State Marco Rubio said that India and Pakistan should de-escalate the situation. He had a word with our foreign minister as well as the Pakistani PM Shehbaz Sharif, and he said that both the countries should work towards not moving the issue forward rather than de-escalating it. And now, if we talk about the Indian officials, our Foreign Minister S. Jaishankarji posted on Twitter, which is now X, and he said that he discussed the Pahalgam attack with Marco Rubio and said that the attacks perpetrators, यानी कि जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, the backers जिन्होंने इसको support किया है, and the planners जिन्होंने इसको plan किया है, they would be brought to justice. Now, around this issue, many things have happened. We have discussed all of those updates, be it the Cabinet Committee on Security meeting couple of times in a span of few days, be it our Prime Minister meeting the Chief of Defense Staff, the Army Chief, the Air Force Chief, the Naval Chief, and the National Security Advisor. Now, another update in this context is that military activity was ongoing on the line of control. We all know that in the past 5-6 days, there has been, activity on both the ends of the border on the line of control. Currently, India and Pakistan, both their navies have conducted simultaneous naval exercises in the Arabian Sea. The Arabian Sea is the water body, which is, you could say, below Gujarat. And this is a rare occurrence that both the countries are doing this exercise in the times of tension. Obviously, it's a preparatory sort of exercise. Both of them have issued naval area warnings that naval movement is happening in this particular area. This is a safety zone, all of those things. And yeah, that's pretty much it. That is what the article sort of tells you about. Okay. On the right hand side, you see GST collection is at a record high of 2.37 lakh crore in April. So that's good news, mostly. US gains access to Ukraine's minerals. Now, this is an important article for us because this is a major development in the geopolitical scenario where US was looking at extracting something out of Ukraine because it has been providing military aid to Ukraine for a very long period of time. बीच में pause भी कर दी थी for a while, but फिर से reinstate कर दी. And now, on Wednesday, which was yesterday, they have, not yesterday, which was day before yesterday, they have signed a significant agreement. And this has given American access to Ukraine's vast mineral resources, particularly बात करें तो rare earth minerals. And इस agreement का नाम आपको पता होना चाहिए. It's the US-Ukraine Reinvestment Fund. ठीक है, US-Ukraine Reinvestment Fund. अभी पूरी details इन्होंने public में नहीं बताई है, but speculations are that this deal is going to provide US access to strategic minerals, and यूक्रेन को एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी और रीअश्योरेंस मिल गया कि यूएस की तरफ से उनको सपोर्ट मिलता रहेगा विद द ऑनगोइंग वॉर इन रशिया विद रशिया. एंड यही इस डील की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि यूक्रेन, इफ यू लुक एट द ज्योग्राफी, इट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल रेयर अर्थ मिनरल्स. एंड रेयर अर्थ मिनरल्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? For electronics, for semiconductors, for defense equipments, for aerospace industries, for space industries, for renewable energy. All of these things require rare earth minerals and metals. And US का interest काफी टाइम से रहा है in resources में, which was its strategic move to sort of counter the over dominance of China, over dependency over China for rare earth supplies, because we all know that China is one of the largest sort of home ground for rare earth minerals and their processing. तो इससे एक पॉलिटिकल मैसेज भी यूएस ने सेंड किया है कि वो पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट नहीं, और अपना एक कमिटमेंट भी दिखाया है यूक्रेन की तरफ. यूएस के जो ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बोला है कि दिस डील इज अ क्लियर सिग्नल टू रशिया दैट अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है वो एक सॉवरेन यूक्रेन की तरफ है, प्रॉस्पेरस यूक्रेन की तरफ है. एंड दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स पीस which Trump administration is trying to establish through Ukraine and diplomacy and by talking to Russia. Political context अगर थोड़ा सा और हम पीछे जाएं और इसको समझें तो ट्रम्प का इन्वॉल्वमेंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सिमिलर एग्रीमेंट ट्रम्प ने साइन किया था लगभग 2 महीने पहले, but that agreement collapsed because of a tense meeting which happened with Zelensky. I think हमने डिस्कस भी किया था वो, आप लोगों को याद होगा कि ओवल ऑफिस में मीटिंग हुई थी ट्रम्प की एंड जेलेंस्की की, वेयर ट्रम्प सॉर्ट ऑफ was seen as you could call it a little bit of scolding to Zelensky that why is he not ending the war and all of those things. So that meeting happened in Oval Office. Oval Office, पता है आप लोगों को? Oval Office is the official place of work of the US president. It's situated in the White House, which is the residence of the POTUS,
POTUS is president of the United States. ठीक है. So ट्रम्प ने उसके बाद बोला कि ये जो डील है, this would ensure that US receives more than it gives, and he said that he want that sort of thing to be protected, that agreement to be protected, because US did not want to look stupid by just keep on giving aid to Ukraine and not getting any economic या strategic benefit in return. अब दिस डील कम्स एट अ क्रूशियल टाइम जब रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे अटका हुआ है कि ट्रम्प इज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ ब्रोकर द वॉर इनटू पीस एंड पुतिन इज नॉट ट्राइंग टू बैक डाउन फ्रॉम हिज स्टांस. सो देखते हैं अब आगे कैसे चीजें प्रोग्रेस करती हैं नाउ दैट यूएस एंड यूक्रेन हैव कम अ लिटिल मोर क्लोजर. ठीक है जी. मोदी चैंपियंस ऑरेंज इकोनॉमी एट वेव्स. तो अब ये वेव्स क्या चीज है? दिस वेव्स इज आप कह सकते हो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ समिट, एंड इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इट्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट. ठीक है, एक समिट हुई है मुंबई में, स्पेसिफिकली बात करें तो जियो वर्ल्ड सेंटर पे, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स या पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 90 कंट्रीज हैव शोड अप. काफी इंडिया से भी काफी डिग्निटरीज हैव शोड अप. मुकेश अंबानी जी, ऑफ कोर्स, द सीईओ एंड एमडी ऑफ रिलायंस, and superstars Rajnikant was also present in that meeting. So first of all they paid their tributes to the Pahalgam terror attack and expressed solidarity with the government. उसके बाद awards का announcement हुआ. मोदी जी ने अपनी speech दी. मोदी जी ने बोला कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनको अपना कंटेंट इंडिया में क्रिएट करना चाहिए, क्रिएटिव कंटेंट, सो दैट वी कैन आल्सो पोजीशन इंडिया एज अ कल्चरल एंड क्रिएटिव पावर हाउस. उन्होंने कहा क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड. जैसे मेक इन इंडिया वाला स्लोगन था, वैसे ही उन्होंने स्लोगन दिया क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, which sort of encourages international collaboration, investment in India's creative sectors. And उन्होंने एक word use किया which was orange economy, जिसका मतलब है क्रिएटिव इकोनॉमी को मोमेंटम मिल रहा है इंडिया में, एंड आवर फोकस हैज टू इंक्रीज ऑन कल्चर, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, which would again drive economic growth for us. It would help in job creation for us. And उन्होंने emphasize किया कि we need to strengthen our ties as well as respect the culture of other countries. And उन्होंने एग्जाम्पल दिया पेरिस का, ज्यूस का, जिन्होंने बहुत इजीली और बहुत अच्छे से इंडियन सोसाइटी में, पेरिस कह रहा हूँ, पारसीज कहने वाला था, पारसीज को पेरिस कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है, पारसीज का और ज्यूस का उन्होंने एग्जांपल दिया जो बहुत अच्छे से इंडिया के इकोसिस्टम में, कल्चरल एथोस में इंटीग्रेट हो गए, एंड टुडे दे आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर. एंड उन्होंने कहा कि ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनको पता होना चाहिए कि इंडिया इज अ वेरी ओपन, इंक्लूसिव sort of a country which naturally connects with different diverse cultures. एंड यही सब है इसमें. उन्होंने यही बोला कि रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ह्यूमन सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो ह्यूमैनिटी को एनरिच करे, एंड इट शुड नॉट रिड्यूस पीपल टू रोबोट्स. तो यही सारी चीजें हैं. फिर अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ, वेव्स अवार्ड्स करके इन्होंने दिए फॉर recognizing people who have been excellent in creativity and media on a global platform. And उन्होंने कहा कि waves सिर्फ एक short form नहीं है, सिर्फ एक acronym नहीं है, it's a symbol of cultural, creative and universal connectivity. So that was about the waves sort of thing which happened in Mumbai. Then fire broke out in Ajmer hotel. City-based news is not important, so we can move ahead. Kolkata hotel fire is not important for us. Punjab Haryana water row intensifies, opposition flays, demands inaction. So Punjab और हरियाणा के बीच में ये थोड़ा सा tussle चल रहा है between control over the water which flows from Punjab to Haryana and then also flows towards Delhi. तो ये कह रहे हैं कि पंजाब, allegation ये है कि पंजाब is not releasing enough water into the rivers. And Punjab के जो CM उन्होंने कहा Punjab does not have surplus water to share with anyone, and alleged that neighboring BJP ruled states of Haryana and Rajasthan had joined hands to rob Punjab of its share of water. तो ये आज का इशू नहीं है, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है पंजाब हरियाणा का वाटर इशू, बट या इस पे पॉलिटिक्स हो रही है आजकल. ठीक है, ओके. Veer Shaiva's Lingayats to seek separate religious code for community in census. Now, all of this is related to the news which we discussed yesterday, which was regarding caste enumeration in the upcoming census. So, in a change of stance, RSS leader now backs caste enumeration. So, पहले ये जो है caste enumeration के against थे, अब उसके फेवर में आ गए क्योंकि बीजेपी ने बोल दिया है कि caste enumeration हम करेंगे. Then moving ahead.
Don't want people going after Muslims and Kashmiris, says wife of naval officer. J&K Waqf Board honors sacrifice of Pony Rider operator. विजिंजम पोर्ट सेट टू बूस्ट साउथ एशियाज मैरीटाइम ट्रेड. सो ये विजिंजम करके पोर्ट है जो हमने केरला में स्टार्ट किया है, which would, as the title says, help in boosting our trade. And this would reduce India's dependence on international facilities. Seaport will have an AI-driven control room, and PM has dedicated this project to the nation today. Okay, what else is important here? ठीक है. Okay, this is not important for us. We can move ahead. Okay, we're down to the editorial section. Reviving a far-sighted but forgotten bill mechanism. कौन से bill mechanism की बात करें? हम बात कर रहे हैं the mechanism of having a private member bill. तो चलो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं पहले इसके बारे में. तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें मैक्सिमम लॉज जो है गवर्नमेंट बनाती है, एंड गवर्नमेंट का मतलब है जो इलेक्टेड रूलिंग पार्टी है उस एंड उनकी मिनिस्ट्रीज वो लॉज लेके आते हैं, वही लॉज को बनाते हैं, बिल्स को बनाते हैं. बट देयर इज अनदर वे टू ब्रिंग लॉज इनटू इंडिया, टू ब्रिंग बिल्स इनटू द पार्लियामेंट, व्हिच इज कॉल्ड द प्राइवेट मेंबर्स बिल, पीएमबी शॉर्ट में बोलते हैं इसको. एंड इससे होता क्या है, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेट्स से वो नॉन रूलिंग पार्टी का भी है, लेट्स से आम आदमी पार्टी का है या कांग्रेस का है या टीएमसी का है, विच एवर पार्टी, अगर कोई मतलब रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं ऑपोजिशन से हो, बट यूजुअली प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हम देखते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी ज्यादा लेके आती है. बट ये बिल्स पर्पस क्या सर्व करते हैं, अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई आइडिया है जिस पे एक लॉ बन सकता है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर ना भी हो, जरूरी नहीं कि अगर कोई फाइनेंस का बिल वो लेके आ रहे हैं तो वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, जरूरी नहीं कि अगर कोई एजुकेशन का बिल वो लेके आ रहे हैं तो वो एजुकेशन मिनिस्टर हो. वो रूलिंग पार्टी से भी हो सकते हैं, वो अपोजिशन से भी हो सकते हैं, वो मिनिस्टर भी हो सकते हैं, वो नॉन मिनिस्टर भी हो सकते हैं. सो ऐसा जो प्रोविजन है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स बिल. एंड यूजुअली पार्लियामेंट पे जो प्राइवेट मेंबर बिल पे डिबेट होती है वो फ्राइडे को होती है. फ्राइडेज आर केप्ट असाइड फॉर डिस्कसिंग प्राइवेट मेंबर बिल्स. लेकिन आजकल एक ट्रेंड जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो ये है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं वो बिल्कुल डिस्कस हो ही नहीं रहे, नॉट एट ऑल, because of multiple reasons. It could be disruptions in the parliament, it could be adjournments, it could be government business taking priority, other bills taking priority. तो अगर स्टैटिस्टिकली देखें इस इशू को, नंबर्स की बात करें, तो सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस व्हिच हैपेंड इन 1947, only 14 private member bills have ever been passed and signed into a law. Just 14 bills. 75 years से ज्यादा हो गए इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए. सो मोटा मोटा मान के चलो तो हर 5 साल में एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है सक्सेसफुली लॉ बन पाता है. एंड अनदर शॉकिंग डेटा इज सिंस 1970 no private member bill has ever been passed by both the houses of parliament. अगर आप पिछले लोकसभा सेशन की बात करो, which was the 17th लोकसभा सेशन which ran from 2019 to 2024, 729 private member bills were introduced in Lok Sabha and 705 प्राइवेट मेंबर बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा. लेकिन डिस्कशन बहुत कम पे हो पाया. अभी वाली लोकसभा की बात करो तो 64 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, बट किसी पे भी डिस्कशन नहीं हुआ, एक पे भी अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ. अब सिग्निफिकेंस की बात करो तो व्हाई आर दीस प्राइवेट मेंबर बिल्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे हेल्प MPs raise important issues which matter to the people, either of their particular state or their constituency or even to the country in general. या फिर कोई ऐसा ट्रेंडिंग लेट्स से कोई इशू क्रिएट हो जाता है तो उस पे प्राइवेट मेंबर्स कई बार बिल लेके आते हैं कि अगर गवर्नमेंट उन पे नहीं भी फोकस कर रही है तो पार्लियामेंट में उस पर चर्चा होनी चाहिए एंड इफ रिक्वायर्ड उस पर लॉ बनना चाहिए. कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो a good example है सुप्रिया सूले who brought a bill for right to disconnect बिल करके वो लेके आई थी 2019, जिसमें उन्होंने कहा कि एम्प्लॉइज शुड नॉट बी फोर्स टू रिप्लाई टू वर्क मैसेजेस आफ्टर देयर वर्किंग आवर्स. यानी कि अगर आपकी 9 to 5 की वर्किंग है तो अगर आपका बॉस आपको 6 बजे मैसेज कर रहा है तो यू हैव अ राइट टू से, ठीक है गाली नहीं देते हैं लाइव स्ट्रीम पे, यू हैव अ राइट टू नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट मैसेज. ठीक है. Although this bill could not pass, but it did start a national debate around working hours, around working conditions, and all of those things. Second thing was that this bill not just sparked a national debate, but also showed that अगर government किसी चीज पे focus नहीं भी कर रही है, but still that thing is important for the nation, वो चीज discuss होनी चाहिए.
एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो तिरुचि सिवा करके एक मिनिस्टर है जो बिल लेके आई थी ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स, एंड दैट बिल वाज पास बाय राज्यसभा एज वेल। लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया उस टाइम पे इन 2015 जब वो लेके आई, बट उसके अराउंड डिबेट स्टार्ट हो गई एंड देन कंट्री में एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि ये ट्रांसजेंडर्स के लिए एक हमारे पास लेजिस्लेशन होना चाहिए, एक एक्ट होना चाहिए। एंड दैट स्ट्रगल लेड टू द मेकिंग ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट ऑफ 2019। तो भले ही 4 साल बाद उस पर लॉ बना, लेकिन वो डिबेट वहां से स्टार्ट हुई 2015 से, जब वो ट्रांसजेंडर राइट्स पे एक बिल लेके आई तिरुचि जी। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि हर रूलिंग पार्टी के एमपी जो है प्राइवेट मेंबर बिल यूज कर सकते हैं, नॉन रूलिंग पार्टी के भी कर सकते हैं। रूलिंग पार्टी की बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो बीजेपी के एक एमपी हैं गोपाल शेट्टी करके, जिन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था विच वाज आस्किंग फॉर फ्री मेडिकल केयर फॉर सीनियर सिटीजन। अब ऑब्वियसली वो पास नहीं हुआ बिकॉज उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा सरकार को, एंड इतना हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दैट वी कैन प्रोवाइड फ्री मेडिकल केयर टू ऑल आवर सीनियर सिटीजन। तो काफी सारे चैलेंजेस भी हैं प्राइवेट मेंबर बिल को लेके। चैलेंजेस और रिफॉर्म्स दोनों चीजों की जरूरत है। प्राइवेट मेंबर बिल्स को उतना ड्यू क्रेडिट और टाइम नहीं मिलता बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस लाइक पार्लियामेंट के सेशंस काफी छोटे होते हैं, देन फ्राइडेज यूजुअली कैंसिल हो जाते हैं या फिर यूज हो जाते हैं अदर थिंग्स के लिए, अदर डिस्कशंस के लिए। एंड जो रूलिंग पार्टी होती है उसमें और ऑपोजिशन पार्टी, सारी पार्टीज में कुछ ना कुछ एंटी डिफेक्शन चलता रहता है, एंड एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से एमपीज जो है इंडिपेंडेंटली नहीं सोच पाते। कि कहना ये चाह रहा हूं मैं कि अगर लेट से कोई रूलिंग पार्टी है एंड उसका कोई मेंबर ऐसा बिल लाना चाहता है जो पार्टी के एजेंडा के अगेंस्ट है, तो वो जो है बैक डाउन कर जाता है। तो वो चीज भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इसमें हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि फ्राइडेज को आप डेजिग्नेट कर दो, प्रोटेक्ट कर दो कि उस पे सिर्फ प्राइवेट मेंबर बिल का ही डिस्कशन होगा, एंड डोंट कैंसिल देम एक्सेप्ट देयर इज एन इमरजेंसी। Second thing which the author says which can be done in this regard is forming a review committee, forming a special group जो चेक करे कि कौन से प्राइवेट मेंबर बिल्स आए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो वेल ड्राफ्टेड है, जिन पे डिस्कशन किया जा सकता है। थर्ड थिंग which we can do as a recourse is having longer hours, and instead of using फ्राइडे का टाइम, पार्लियामेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवर्स बैठना चाहिए एंड फिनिश दिस गवर्नमेंट वर्क ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स। या फिर एक और चीज हम जो कर सकते हैं विच इज फॉलोइंग द यूके स्टाइल, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम में 10 मिनट रूल फॉलो होता है कि इन द यूके एमपीज कैन प्रेजेंट अ बिल इन जस्ट 10 मिनट्स एंड इंडिया कैन आल्सो गिव इट अ शॉट, राइट। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि प्राइवेट मेंबर बिल्स आर लाइक अ गोल्ड माइन, सोने की खान जैसे हैं वो, which help us bring new ideas and show the true spirit of democracy, and इसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इस प्रोसेस को हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल टेल्स अस अबाउट। ठीक है, तो ट्रेंड्स मैंने आपको बता दिए, देन एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, देन एक्शन क्या हो रहा है उसमें मैंने वो भी आपको बता दिया, एंड रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कास्ट सेंसस शुड नॉट बी अलाउड टू ऑसिफाई सोशल सेगमेंटेशन। ठीक है, ऑसिफाई मतलब एक तरीके से कंसोलिडेट करना होता है, सोशल सेगमेंटेशन मतलब समाज को बांटना बेस्ड ऑन डिफरेंट कास्ट, एंड ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं कास्ट सेंसस के। सो दोबारा से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ उस आर्टिकल को, आप लोग पढ़ सकते हो। China's strategic push Asia ties amid tariff tensions. Now, although इस इशू पे भी हम दोबारा बात कर चुके हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो इसमें क्या क्या डिस्कस्ड है। सबसे पहले बात करें तो ये मोर और लेस बात करता है अबाउट शी जिनपिंग्स विजिट टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। शी जिनपिंग जो है दौरे पे निकले हुए हैं अपने साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स से मिलने, टू कंसोलिडेट चाइनाज डिप्लोमेसी इन दैट रीजन। प्राइमरली 3 कंट्रीज उन्होंने विजिट करी, वियतनाम, मलेशिया एंड कंबोडिया, एंड दिस वाज टू sort of position China as a reliable regional partner between US एंड चाइना के जो टेंशन चल रहे हैं, ट्रेड वॉर्स एंड टैरिफ वॉर्स जो चल रहे हैं। एंड इसका एक और पर्पस ये भी था कि यूएस का जो इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है आफ्टर द टैरिफ्स हैव बीन इम्पोज्ड, उसको थोड़ा सा काउंटर किया जाए, उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट किया जाए बाय इंक्रीजिंग टाइज विद नेबरिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब इसके स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट की अगर आप बात करो तो चाइना का जो सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्किंग रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज करके एक डेजिग्नेटेड टूर है which happened between 8 and 9th April that emphasized that China को एक community बनानी है with a shared future, ऐसा उन लोगों ने कहा, चाइना ने कहा ऐसा, and they said that they are recalibrating their strategy with response to the tariffs, with response to the export controls,
जो टेक्नोलॉजिकल बैन्स लगाए हैं अलग अलग कंट्रीज ने, जो फाइनेंशियल डीकपलिंग करी है यूएस के ट्रेड इम्पोजिशन ने, वो सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए हम नेबरिंग कंट्रीज से एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब इसमें this conference and this visit acts as a buffer भी कह सकते हो, acts as a bridge भी कह सकते हो, because China is trying to maintain its trade links, China is trying to diversify its manufacturing and supply chains, China is trying to have more supportive diplomatic partners, and overall बात करें तो China is essentially trying to de-risk itself from the US-led situation, from the US-led narratives as well. अब वियतनाम की अगर बात करें तो वियतनाम का जो टूर किया शी जिनपिंग ने, उन्होंने 45 कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किए, प्राइमरली इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल टाइज से रिलेटेड अग्रीमेंट्स थे ये। एंड कुछ डिस्कशन हुआ साउथ चाइना सी में जो टेंशन चल रही है बिटवीन चाइना एंड वियतनाम, उस पर भी थोड़ी बातें हुई। मलेशिया के साथ जो डिस्कशन हुआ उसमें उन्होंने 30 से ज्यादा अग्रीमेंट साइन करे, प्राइमरली अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी। कंबोडिया की बात करें तो दिस इज लिटिल मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज शी जिनपिंग की पहली विजिट थी टू कंबोडिया आफ्टर 2016, यानी कि ऑलमोस्ट 10 साल बाद कोई चाइनीज प्रीमियर कंबोडिया गया एंड उन्होंने रीइंफोर्स किया अपना प्रेजेंस कंबोडिया में। एंड कंबोडिया की अगर बात करो तो कंबोडिया चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब कंबोडिया के लिए चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ऐसे कह सकते हैं। बायलेटरल ट्रेड उनका लगभग $15 बिलियन का होता है हर साल। एंड उन्होंने बात करी काफी सारी चीजों पे, फ्यूनान टेको करके एक कैनाल पे उन्होंने बात करी जो चाइना बनवा रहा है कंबोडिया में, फ्यूनान टेको, FUNANTECHO। पूछा तो नहीं जाएगा ये, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब यही है कि दिस इज मोर ऑफ अ सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी, जहां पे चाइना जो है अपना एजेंडा पुश कर रहा है साउथ चाइना सी में, अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी कल्चरल लिंकेजेस को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी प्रेजेंस को इन द साउथ चाइना सी एंड इन द इंडो पैसिफिक रीजन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने आपको एक लीडर की तरह पोर्ट्रे करना चाह रहा है। एंड उसी के लिए उसने ये पर्टिकुलर टूर किया है। अब यूएस की बात करें तो यूएस ने इसको एज अ रिएक्टिव रिस्पॉन्स देखा है एंड उन्होंने बोला कि चाइना जो है टैंजिबल डिलीवरेबल्स दे रहा है, लेकिन हम फिर भी जो है टैरिफ उनका कम नहीं करने वाले। अब यही है यार, इसमें और ज्यादा कुछ डिस्कस करने को नहीं है। चाइना जो है अपना बेसिकली हेजिंग कर रहा है, रिस्क कम कर रहा है, लार्जर पिक्चर यही है इस आर्टिकल की। ओके, हैज द पहलगाम अटैक क्रॉस द रेड लाइन? ये इंटरव्यू है, वन ऑफ द पैनलिस्ट इज अ former diplomat and one of them is a former defense personnel। तो उन्होंने यही पूछा है कि क्या पाकिस्तान ने इस बार थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है, एंड वी ऑल नो द आंसर टू दैट कि कर दिया है। तो आप पढ़ सकते हो वो इंटरव्यू, हमारे लिए कुछ ऐसा नया इनपुट नहीं है वहाँ पे। हाउ कैन इंडिया टैप इट्स नेचुरल हाइड्रोजन पोटेंशियल? ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम जस्ट पढ़ लेते हैं इसकी। India's hydrogen demand was projected to grow from 6 million tons per year in 2020 to 50 million tons by 2070 to support its net zero target, net zero carbon emission ka target. Natural hydrogen exploitation and exploration is not easy. It has technical, logistical, economical, and safety-related challenges. US का जो ARPA-E है, which has newly funded projects, it is exploring the potential of geologic hydrogen beyond locating and extracting trapped geologic hydrogen towards the possibility that hydrogen can be produced intentionally। तो ये ARPA-E क्या है, इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं जल्दी से, so that we have more context। फुल फॉर्म नहीं दे रखी इन लोगों ने, अच्छा दे रखी है क्या? नहीं दे रखी मित्रों, गूगल कर लेते हैं हम, because I want to know what is this ARPA-E। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का ये इनिशिएटिव है ARPA-E। इट स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी स्लैश एनर्जी। इट्स अ एजेंसी विद इन यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, जो फंडिंग करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल हमारे लिए। इंडस वाटर ट्रीटी हम डिस्कस कर चुके हैं, कल ही वियना कन्वेंशन हमने डिस्कस किया है कि क्या इंडिया का स्टैंड है, क्या आर्टिकल 62 कहता है वियना कन्वेंशन का। इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है वियना कन्वेंशन, पाकिस्तान ने साइन कर रखा है लेकिन रेटिफाई नहीं कर रखा है। तो ये सारी बातें हमें पता है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी वाली वीडियो नहीं देखी जो मैंने एक्सक्लूसिवली बनाई है इस टॉपिक पे, तो क्या कर रहे हो मित्रों, जाके उस वीडियो को देखो इस सेशन के बाद, ठीक है। कल सलेक सर ने आपके लिए एक और सेशन रिकॉर्ड किया था विच वाज अराउंड शिमला अग्रीमेंट, तो वो भी देख लेना, वो भी काफी लोगों ने नहीं देखा है।
ठीक है जी। Will not spare those involved in cowardly terror attacks, says Amit Shah. Border clashes continue for the sixth day. ठीक है. US notifies potential sale of maritime surveillance technology worth $131 million to India. So जो मैं आपको बता रहा था, इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, जो क्वाड ग्रुपिंग का एक इनिशिएटिव है. क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज. कोई मुझे बता सकता है जल्दी से चैट बॉक्स में कि क्वाड के 4 मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? हु आर द 4 मेंबर कंट्रीज ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग? इंडिया ऑब्वियसली उसका पार्ट है. तब तक मैं आपको ये न्यूज समझाता हूँ. तो यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अप्रूव किया है एक एफएमएस. एफएमएस मतलब होता है फॉरेन मिलिट्री सेल अग्रीमेंट टू इंडिया अंडर दिस आईपीएमडीए वाला इनिशिएटिव व्हिच इज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. एंड इसकी कॉस्ट आपको दिख रही है टाइटल में, $131 मिलियन. तो ये जो नोटिफिकेशन आया 30 अप्रैल को, इसको नोटिफाई किया है डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने ऑफ यूएस. एंड इंडिया क्या ले रहा है इसमें? इंडिया काफी सारी चीजें ले रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ सी विजन सॉफ्टवेयर which has a lot of enhancements for maritime awareness. Second, India ले रहा है ट्रेनिंग. ट्रेनिंग किस चीज की? टेक्निकल असिस्टेंस, फील्ड टीम की ट्रेनिंग. थर्ड इज रिमोट सॉफ्टवेयर एंड एनालिटिक्स सपोर्ट. Fourth is access to software documentation. And last, we have logistical and program support. All in all, कहानी ये है कि मैरीटाइम एरिया में जो अवेयरनेस चाहिए एंड जो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, वो ले रहे हैं. ठीक है. एंड ये आईपीएमडीए कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था जब क्वाड की समिट हुई थी 2022 में टोक्यो में. टोक्यो समिट ऑफ आई थिंक मई 2022 ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग. तब ये आईपीएमडीए जो है लॉन्च किया गया था बाय द क्वाड ग्रुप. इसका गोल था टू टारगेट डार्क शिपिंग. डार्क शिपिंग मतलब होता है जो वेसल्स, यूजुअली पायरेट वेसल्स होते हैं, वेसल्स ऑपरेटिंग विदाउट एआईएस ट्रांसमिटर्स. अब एआईएस ट्रांसमिटर्स क्या होते हैं? एआईएस ट्रांसमिटर्स, AIS stands for Automatic Identification System. जो AIS का ट्रांसमीटर होता है वो लोकेशन बताता है उस नेवल वेसल की या फिर उस मैरीटाइम वेसल की टू द नियर बाय वेसल ट्रैफिक सर्विसेज. तो एटीएस आपने सुना होगा, एयर ट्रैफिक सर्विसेज होती हैं जो गाइड करती हैं एयरक्राफ्ट को, जो ट्रैक करती हैं एयरक्राफ्ट को जो एयर स्पेस को क्रॉस कर रहे होते हैं. वैसे ही वेसल ट्रैफिक सर्विसेज भी होते हैं जो यू नो एक सी बॉडी में वेसल्स को आइडेंटिफाई करती हैं. शिप्स होती हैं, बोट्स होती हैं, उन सबको वेसल्स को आइडेंटिफाई करती है. तो जो बड़ी ही वेसल्स होती हैं उसमें एआईएस होना जरूरी है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ताकि पता चल जाए कि ये जहाज कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है. तो डार्क शिपिंग का मतलब होता है अपना जहाज चलाना विदाउट अ एआईएस ट्रांसमीटर, ताकि एक रियल टाइम सिनेरियो ना पता चल पाए वेसल ट्रैकिंग सिस्टम्स को. एंड उसी को काउंटर करने के लिए आईपीएमडीए बनाया गया था. एंड इसकी कवरेज की अगर हम बात करें तो दिस कवर्स द इंडियन ओशन रीजन, द पैसिफिक आइलैंड्स एंड द साउथ ईस्ट एशियन रीजन. पूरा ये चाइना के आसपास आपका थाईलैंड, वियतनाम वाला रीजन कह लो. ठीक है. तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है कि इट सपोर्ट्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस, its national security objectives. It also strengthens the partnership between India and US regarding maritime safety, and it also sort of stabilizes the peace in that particular Indo-Pacific region, also the economic progress in that region. एंड इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है? इंडिया के लिए ऑब्वियसली मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हमारी बढ़ जाएगी, हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी इन दैट रीजन, हमारी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी इन दैट रीजन, एंड वी वुड बी capable of sort of deploying and absorbing better technology in that particular region, and this can also help our armed forces in conducting operations more smoothly. Commercial details की अगर बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्टर है इस डील के, उसका नाम है Hawkeye 360, which is a US based sort of radio frequency data analytics की कंपनी है. वो डेटा ट्रैक करती है, कमर्शियल डेटा प्रोवाइड करती है. तो यूएस की कंपनी है Hawkeye 360 जो ये डील करवा रही है, जो ये डील फुलफिल कर रही है, आप कह सकते हो रादर. ठीक है. तो इतना ही जो है काफी है आपके लिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. आगे देखते हैं. कांग्रेस नेवर अंडरटुक कास्ट काउंट एज पार्टी हिस्टोरिकली अपोज्ड इट, सेज बीजेपी. CWC, which is the Central Congress Working Committee, is going to meet today. Congress is seeking amendment to lift 50% cap on reservation. ठीक है. Census likely to be held next year to match delimitation schedule, says Mr. G. Kishan Reddy, who's a union minister for coal and mining. ठीक है, सही है. देखते हैं होता है कि नहीं होता है अगले साल. Caste enumeration is the need of the hour, says Chirag Paswan.
Okay. Protect vulnerable people from summer heat, says NHRC to states. NHRC is National Human Rights Commission. उन्होंने कहा है कि पब्लिक स्पेसेस में वेंटिलेशन बढ़ाओ, पंखे लगाओ, पानी की फैसिलिटीज लाओ, मेडिकल सप्लाईज लाओ, ताकि लोग गर्मी से मर ना जाएं, बेहाल ना हो जाएं. We need to have treatment protocols in place in communication in consonance with the NDLA, which is the National Disaster Management Authority, ताकि हीट रिलेटेड जो भी इलनेसेस हैं उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हो. ठीक है. आर्मी एयरफोर्स सी मेजर चेंजेस एट द टॉप एज न्यू लीडर्स टेक ओवर. तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये नाम याद करना. नदन कमांड के जो है नए चीफ अपॉइंट हो गए हैं. फिर वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स हैज आल्सो बीन न्यूली अपॉइंटेड. Air Marshal Narmadeshwar Tiwari, new Vice Chief of Indian Air Force, and new Chief of Integrated Defence Staff is Air Marshal Ashutosh Dikshit. ठीक है. ये नहीं पूछे जाते हैं यूजुअली वाइस चीफ एंड अलग अलग कमांड्स के हेड्स, सो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए. देन ठीक है. और क्या है यहाँ पे? और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. मैंने से इम्पोर्टेंट नहीं है, आई मीन क्लैट पर्सपेक्टिव से क्लैट एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट सारी न्यूज होती है, बट आई वांट यू गाइस टू बी स्पेसिफिक एंड डू थिंग्स which have high relevance for your exam. Trump removes Mike Waltz from the post of National Security Advisor. तो इनके National Security Advisor थे ये भाई साहब माइक वॉल्ट्स, जिनको रिजाइन करा दिया गया है एंड इनको बोला गया है कि अब हम आपको बनाएंगे यूएस का एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस. अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी ज्यादा बन नहीं रही डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मार्को रूबियो, जो कि इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्हीं को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बना दिया फॉर द टाइम बीइंग. So here you can see Secretary of State Marco Rubio will act as the interim security advisor. Trump, who said Waltz has worked hard to put the nation's interest first, nominates him to the next US envoy to the UN. So एक तरीके से हटाने का तरीका है ये. Waltz के जो डेप्यूटी हैं एलेक्स वॉन्ग, उनको भी हटा दिया गया है. ठीक है. तो यही है अपडेट, इसमें और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. Nobody wants another centralized regime in Syria, says Kurdish leader. कर्ड्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी. व्हाट इज कर्डिस्तान, व्हाई इट डज नॉट एग्जिस्ट, हु आर द कर्ड्स. वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो अगर आपको पूरी हिस्ट्री समझनी है कर्ड्स की एंड अभी का उनका क्या सिग्निफिकेंस है. देन ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स विद यूएस आर पोस्टपोन्ड. स्पोर्ट्स न्यूज में कल मुंबई इंडियंस फिर से जीत गई. मुंबई इंडियंस आर ऑन अ रोल, टॉप ऑफ द टेबल आ गए हैं. अब शुरू में काफी मैचेस हारे, बट दैट इज जस्ट टिपिकल मुंबई इंडियंस बिहेवियर. ओके. ठीक है. We don't have anything else which we need to discuss in the newspaper. We are done with it, which means it's time to do some vocabulary, and then it's time for the Menti quiz of the day. All right, चलो जल्दी से vocabulary कर लेते हैं and उसके बाद हम Menti quiz खेलेंगे आज का. The first word is fidelity. Fidelity का मतलब होता है loyalty, obedience, allegiance. किसी पर्सन की तरफ हो सकती है, किसी कॉज की तरफ हो सकती है. This usually shows continuing loyalty and support, faithfulness. इसका उल्टा क्या होता है? Infidelity, जो कि आप कई बार सुनते हो as a synonym for cheating. ठीक है. Infidelity इसका opposite हो गया. Disloyalty, faithlessness, falseness are also antonyms. Sentences: I had to promise fidelity to the queen. The next word is ये सुनने में थोड़ा गाली जैसा लग सकता है प्रोनाउंसिएशन में, बट इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हो. इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, हुत्स्पा. ठीक है. तो इसको हम हुत्स्पा बोलते हैं एंड इसका मतलब होता है एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस या ऑडेसिटी, बहुत ज्यादा हिम्मत, जज्बा, जुनून. ऑडेसिटी, चीकीनेस या फिर गट्सीनेस इसके सिनोनिम्स हैं. बैशफुलनेस, डिफिडेंस एंड हेजिटेंसी, घबराना आर एंटोनिम्स. इट टुक अ लॉट ऑफ हुत्स्पा टू टॉक टू योर बॉस लाइक दैट. ठीक है. समझ गए आप लोग? तो मिसप्रोनाउंस मत करना इसको, वरना यू माइट लैंड इन ट्रबल. द नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड इज इडल. इडल का मतलब होता है एकदम खुशनुमा माहौल, एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरेस्क एपिसोड और सीन, टिपिकली एन आइडियलाइज्ड और अनसस्टेनेबल वन. अब इसका एग्जांपल मैं क्या दूं आप लोगों को? छोड़ो, मेरे मन में एक एग्जांपल तो आया था. आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी नहीं होगी, द फर्स्ट धूम मूवी, जिसमें वो अली वाला कैरेक्टर होता है. देखिए तो बहुत अच्छी बात है. धूम 2 में भी होता है, आई थिंक धूम 3 में भी होता है. तो जो अली कैरेक्टर है, जो ऐसे सपने देखता है, उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड. ठीक है. His year as a vineyard worker in the south of France was not the idyll that he had expected it to be. ठीक है. तो जैसा उसने सोचा था कि एकदम रोजी दुनिया रहेगी, जैसा आप लोग सोचते हो नेशनल यूनिवर्सिटीज में होती है,
वैसी नहीं होती है, बट ठीक है, मैं सस्पेंस नहीं खराब करूँ, बहुत अच्छा होता है नेशनल यूनिवर्सिटी जाना। वंडरफुल टाइम, मोमेंट ऑफ ब्लिस, हेवन आर सिनोनिम्स। ठीक है जी, सो दीज आर द वोकैबुलरी फॉर द डे. Now is time for Menti quiz on modern history. So people who are new to the process of Menti quiz हमारा एक MCQ based quiz होता है जिसमें we have 10-15 questions, MCQ based, 4 options. You have to mark the correct option based on your understanding as soon as possible. सिर्फ एक ही option correct होगा out of 4 obviously. एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल. सो आप लोग सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो. जो जितना जल्दी आंसर करेगा उसको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. जो जितने ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा वो लीडर बोर्ड पे, रैंकिंग पे उतना ज्यादा ऊपर आ जाएगा. और जो 15 क्वेश्चन के एंड में सबसे ज्यादा जिसके पॉइंट्स होंगे जीत जाएगा. 7 करोड़ नहीं, 7 करोड़ नहीं दूंगा मैं क्योंकि मेरे पास है नहीं, जस्ट बधाई दूंगा मैं आपको. ठीक है, तो चलो आज के मेंटी क्विज का कोड मैं बता देता हूं आपको. कोड है 74685399. 74685399. अब अगला सवाल होना चाहिए ये कोड कहां पे डालना है. ये कोड डालना है आपको ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड www.menti.com. MENTI menti.com. मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए कोड भी और वेबसाइट भी. www.menti.com is the website जिस पे आपको जाना है और ये कोड एंटर करना है which is 74685399. ओके, ठीक है. अब हम स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं अपना मेंटी क्विज. So give me a moment. तो जल्दी से आप लोग अगले 10 से 15 सेकंड में क्विज को ज्वाइन कर लीजिए. फिर हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं आज का. एंड देखते हैं कौन बनता है आज के क्विज का विजेता. Okay, you guys have the next 15 seconds to join the quiz. This is the code, this is the website, this is the QR code. अगर आपको फोन से ज्वाइन करना है तो फोन से भी ज्वाइन कर सकते हो. एक नए टैब में ज्वाइन करना है थ्रू द वेबसाइट तो वो भी कर सकते हो. योर कॉल, योर विश, आपकी मर्जी. जल्दी से कर लो लेकिन. Quickly. Let's see how many people have joined us. देखते हैं. जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है आप लोग अपना नाम चेंज करके अपने ओरिजिनल नाम से आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. वी हैव 30 प्लेयर्स हु हैव ऑलरेडी जॉइन. आई विल वेट फॉर 10 मोर सेकंड्स बिफोर आई स्टार्ट द क्विज. हो सकता है आपके पास ऑप्शन आया होगा नाम चेंज करने का. नहीं आया तो कोई बात नहीं, आया तो नाम चेंज कर लो अपना. We'll start in the next 10 seconds. चलो, let's do a countdown. 10, 9, 8. Thala for a reason. 7, 6, 5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.25, 1. Okay, let's go. Time to start the quiz. We have 33 players. With that, let's look at the first question of the modern history quiz of this week. It's on your screen. Answer it as soon as possible. Okay, easy question से हमने थोड़ी शुरुआत करी है. थोड़ा easy ही था. I would say it was an easy question. And a leader of the extremist faction among these 4 options is बाल गंगाधर तिलक. लाल बाल पाल की ट्रायो आपने शायद हिस्ट्री में सुनी हो, पढ़ी हो, अगर आपने ध्यान से स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी है. बाल गंगाधर तिलक एंड he was one of the extremists. बाकी सारे 3 जो आपको नाम दिख रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, all of these were moderates. हिंदी में इनको बोलते हैं नरम दल एंड गरम दल. ये आपको शायद स्कूल में ना बताया हो, बट ठीक है. बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स सी हु आर द पीपल जिन्होंने ये सबसे जल्दी आंसर कर दिया है. ओह, थाला इज ऑन टॉप एंड लाइक द आईपीएल टेबल. Fastest response by Thala. Then we have Agent Holmes. क्या बात है. Then we have Adarsh, Newborn, Sanskriti, Mannat, Sam, Chandralekha, Anshu and Bhanuj. So well played guys. Let's move on to question number 2. देखते हैं ये वाला question कौन सही कर पाता है, कितने लोग सही कर पाते हैं.
It's on your screen now. स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात सबसे पहले हुई थी इन द लाहौर सेशन ऑफ 1929 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस राइट सो दैट मेक्स मी अ लिटिल हैप्पी that 22 people knew the correct answer to this. Fantastic. Awesome. सबको 1000 पॉइंट कैसे मिले यार? ये कुछ ग्लिच आ गया है मेंटी में, किसी एक क्वेश्चन में सबको 1000 पॉइंट मिल जाते हैं सरप्राइजिंगली. बट ठीक है, आई कैन सी न्यू नेम्स ऑन द लीडर बोर्ड. आई कैन सी कुकू ऑन द लीडर बोर्ड, शुरिकिन बॉट ऑन द लीडर बोर्ड. आई डोंट नो, ये ऑटोमेटिक नेम्स हैं, आप लोगों ने जानबूझ के रखे हैं, बट जो भी है बढ़िया है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3 आउट ऑफ 15 कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन नाउ. खिलाफत मूवमेंट के लीडर कौन थे इंडिया में? 21 people got this right. It's two brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali. And Khilafat movement was a movement started by them to support the caliphate in Turkey. And उसको इन्होंने align किया with the Indian freedom struggle. And गांधी जी ने भी इनको support किया. And that was the Khilafat movement. बाकी गलत responses हैं. Let's see who all got this one right. Okay. Agent Sherlock Holmes is now on top with the fastest response. Then Thala is on second. Then Adarsh, Sam, Chandralekha, Shuriken, Kuku, Sandy, Anirudh, and Frosty. So new names on the leaderboard again. Lovely. Question number 4. 31 players playing with us. Let's go for question number 4. क्या बात है, 14 people got this right. It was Lord Canning who was the Governor General during the revolt of 1857, also called the First War of Independence या फिर Indian Rebellion. Lord Mountbatten तो बहुत recent 1947 जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब थे वो. वॉरेन हेस्टिंग्स तो बहुत पुराने, वो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. यस, ठीक है जी. ओके, आगे बढ़ते हैं. किस किस को ये आता था? ओके, न्यू नेम्स अगेन ऑन द लीडर बोर्ड. स्टैटिक जीके क्विजेस का मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इट टेस्ट्स योर नॉलेज फ्रॉम स्कूल. So Thala is again on top. Then we have Kuku, Chandralekha, Shuriken, Sandy, Agent Holmes, Adarsh, Sam. Metal with the fastest responses on the leaderboard. And Sanskriti is now on the leaderboard. Great. Question number 5. Let's see how many people can answer this one. We have 31 players. Question 5 on your screen now. इजी क्वेश्चन था ये, 20 लोगों को आता था. आनंद मठ करके एक नॉवल लिखी थी बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इन द ईयर 1882, जिसमें ये हिम था वंदे मातरम, जो आगे चल के इंडिया का नेशनल सॉन्ग, भारत का राष्ट्रीय गीत बना. एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग. ओके, right. Chandralekha did not get this one. Agent Holmes were the fastest. So Chandralekha is now on the bottom of this visible leaderboard. And Thala is on top. Then we have pretty much the same order. So we'll move to the next question. I want new names on the leaderboard. So come on, people. Buckle up. Question number 6 on your screen now. Oops, only 9 people got this right. थोड़ा सा I would say moderately tough question था ये. And Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar was the person who advocated for widow remarriage and women's education in the Indian society. दयानंद सरस्वती का भी उसमें थोड़ा बहुत contribution था कह सकते हैं, but primarily he is known for founding the Arya Samaj.
ठीक है, तो उनका वो है सिग्निफिकेंस। स्वामी विवेकानंद का सिग्निफिकेंस है दैट ही इज नोन फॉर फाउंडिंग द रामकृष्ण मिशन एंड द रामकृष्ण आश्रम। सर सैयद अहमद खान वाज आल्सो अ फिलोसोफर एंड रिफॉर्मर, जो मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म्स लेके आए काफी सारे। ही इज आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो उनका ये है। एंड अभी के लिए एक रेलिवेंट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये है दैट ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ द टू नेशन थ्योरी। तो जिस पे इतनी डिबेट चल रही है आजकल, जो टू नेशन थ्योरी की बात आसिम मुनीर ने करी थी, सबसे पहले बात सर सैयद अहमद खान ने करी थी। सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1888 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको नाइटहुड दिया था, दैट इज व्हाई द टाइटल सर। ओके, लीडर बोर्ड देखते हैं। लीडर बोर्ड पे सिर्फ 4 लोगों को पता था। सृष्टि what the fastest response is now on the leaderboard. Shuriken Bot is now on top. Then we have Thala, Kuku, Sanskriti, Metal, Sandy, Agent Holmes, Adarsh, Srishti, and Sam. But major kudos to other people who are not on the leaderboard but got that question right. It was not an easy question. Which event marked the end of the revolt of 1857? जल्दी से मुझे बताओ। Okay, let's look at the responses. Yes, the capture of Bahadur Shah 2 is the correct answer. Battle of Plassey 14 लोगों ने, भाई यार come on, Battle of Plassey आसपास भी नहीं है रिवोल्ट ऑफ 1857 के। 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल उसको हरा दिया था। तो बैटल ऑफ प्लासी तो बिल्कुल नहीं हो सकता आंसर इसका। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। कैसे हो सकता है वो इसका आंसर? सीज ऑफ लखनऊ भी नहीं है। कैप्चर ऑफ बहादुर शाह 2 आल्सो नोन एज द लास्ट मुगल एम्परर, जब उनको कैप्चर कर लिया गया, वो लीड कर रहे थे ये रिवोल्ट 1857 का। बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं उनको। जब उनको पकड़ लिया गया और दिल्ली का कंट्रोल वापस ले लिया गया इन जुलाई 1857, तो ये रिवोल्ट खत्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जब ग्वालियर के प्रोटेस्ट को एंड कर दिया गया, which happened a couple of months before capture of बहादुर शाह, तब रिवोल्ट एंड हो गया था। बट some historians say that बहादुर शाह के पकड़े जाने के बाद ऑफिशियली रिवोल्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो यार बैटल ऑफ प्लासी तो what is this guys? What is this behavior? I want you to do better. Thala was the fastest for this one. Pretty much the same names on leaderboard. Sandy is on the leaderboard. Okay, Sanskriti has jumped to the 3rd spot. All right, let's move on to question number 8. We are halfway into our quiz. There's still a lot of questions left for you to top the leaderboard. Who led the revolt against the British known as the Wahhabi movement? सैयद अहमद बरेलवी इज द करेक्ट आंसर। आई नो काफी सारे लोगों ने इसमें तुक्के मारे हैं। सिराजुद्दौला मैंने अभी अभी बताया था कि नवाब ऑफ बंगाल था, एंड वो बहुत पहले की बात है। एंड टीपू सुल्तान वाज फ्रॉम मैसूर। वाजिद अली शाह वाज अनदर लीडर, मुस्लिम लीडर। सैयद अहमद बरेलवी इज द राइट आंसर। ही वाज अ मुस्लिम स्कॉलर एंड रिफॉर्मर जिन्होंने वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश। टफ क्वेश्चन था, आई गिव यू दैट। But many people on the leaderboard got the answer to this one. Bele is a new name on the leaderboard. Shuriken Bot is now on the 1st spot. Thala was the fastest, but on 2nd. Then we have Kuku. Agent Holmes is slowly climbing up the ranks as well. Adarsh is here. Metal is here. Shrishti, Sanskriti, Bele, and Chandralekha is still on the leaderboard. Question number 9. Let's look at it in 3, 2, 1. Let's go. अरे यार, सबसे ज्यादा लोगों ने सबसे गलत रिस्पांस कैसे दिया है? सतारा, नागपुर और झांसी तो 3 प्राइम सिटीज थी जहां पे डॉक्टर ऑफ लैब्स अप्लाई किया गया था।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अ पॉलिसी बाय द ब्रिटिशर्स कि अगर आपका कोई नेचुरल मेल एयर नहीं है, यानी कि आपका कोई वारिस बेटा नहीं है, तो आपका स्टेट ब्रिटिश कंट्रोल के पास आ जाएगा। मैसूर में ऐसा केस नहीं था, ठीक है। सतारा, नागपुर और झांसी को एनेक्स किया गया था थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके। Cuckoo is now on the first spot again. Shuriken Bot is on second. Thala is on third. Metal is fourth. Srishti, Agent Holmes, Adarsh, Sanskriti, Sandy, and Disha is now on the leaderboard with the fastest response. Lovely. Some new names again cropping up. Okay, let's see. 10th question से कौन से नए नाम आ सकते हैं लीडर बोर्ड पे, या कौन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा? चलो, ये तो बहुत सारे। मैंने जानबूझ के लॉर्ड डलहौजी का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था पीछे एक क्वेश्चन में, जब मैं लॉर्ड कैनिंग बता रहा था और लॉर्ड माउंटबेटन बता रहा था, क्योंकि मुझे पता था आगे चल के एक क्वेश्चन है ऑन लॉर्ड डलहौजी और आप लोगों को पता चल जाएगा। बट ठीक है, 12 पीपल गॉट दिस राइट। लॉर्ड कर्जन वाज द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी बहुत पुराने थे। लॉर्ड रिपन जो है थोड़ा बाद में आए थे, ही केम समवेयर अराउंड जब कांग्रेस बन चुकी थी 1880s के बाद। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर, जिन्होंने एनेक्सेशन ऑफ अवध किया था। एंड व्हाई वाज अवध एनेक्स्ड, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा था सतारा, नागपुर, झांसी में, वैसे अवध वाज टेकन बैक ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, की ठीक से एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं जो नवाब ऑफ अवध है, इसलिए हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। Thala again with the fastest responses on top. Then we have Metal on second position, Cuckoo and Shuriken on third, fourth, Srishti on fifth. Sandy, Agent Holmes, Adarsh, Sanskriti, and Bele are on the leaderboard. Chalo. We are moving towards the final segment. Last 4-5 questions. Question number 11. Let's go for it in 3, 2, 1. Siege of Lucknow में देख रहा था कब हुई थी, छोड़ो इसको। SP Sinha या फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first Indian member to the Executive Council as a result of the Indian Councils Act of 1909। एक और भी नाम है Indian Councils Act of 1909 का, कोई मुझे YT के चैट बॉक्स में जल्दी से बताएगा बिफोर आई मूव टू द लीडर बोर्ड कि Indian Councils Act 1909 को एक और किस बहुत फेमस नाम से जाना जाता है? चलो एक हिंट दे देता हूँ, उसमें रिफॉर्म्स वर्ड आता है, एक रिफॉर्म्स। सो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहले इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बने एज पर द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसमें ब्रिटिशर्स ने थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया इंडियंस को इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। वाईटी चैट बॉक्स की तरफ मेरी नजर है। कौन से रिफॉर्म्स, जल्दी बताओ। 1909। यस, कुशाग्र ने मुझे दे दिया है आंसर। द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स इज द करेक्ट आंसर। 1909 में आए थे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, 1919 में आए थे मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, मॉर्लेमेंटो क्यों नाम रखा गया? उनमें से एक वाइसरॉय था और एक जो है दूसरी क्या पोजीशन थी, सेक्रेटरी था शायद। Vidushi saying in the mocks answers of history based passages are mostly found in passage itself. Is that the case in exam too? डिपेंड्स। आरसी का पैसेज है तो हाँ, अगर जीके का है तो मे बी नॉट। अगर आप 2025 की जीके देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द पैसेज, सो प्रोबेबली दैट इज द इंटेंशन कि आप पैसेज से आंसर्स फाइंड आउट कर पाओ। मॉर्लेमेंट ऑफ रिफॉर्म्स हमें आंसर मिल चुका है, तो हम बढ़ेंगे लीडर बोर्ड की तरफ। ओके, Agent Holmes was the fastest response, has climbed to the fourth spot. Thala is on top. Then we have Metal, Cuckoo, Agent Holmes, Shuriken, Sandy, Adarsh, Srishti, Bele, and Sanskriti is back on the leaderboard. Question number 12. 32 players are playing with us. Let's go for it. Question 12 on your screen now, guys. हम बात कर रहे थे पूर्ण स्वराज की लाहौर सेशन की, उसमें प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? Who presided over the Lahore session of the Indian National Congress? चलो, ये तो इजी क्वेश्चन था, सबको आता था। जवाहरलाल नेहरू।
presided over that particular session. Most of you got this right. Okay, I have two new names on the leaderboard. Betelgeuse and Sam are now on the leaderboard. Metal was the fastest, Thala still on top. And we have Cuckoo, Agent Home, Shuriken, Sandy. Very close competition between the first five, six people. And Adarsh, Shrishti, Betelgeuse, and Sam. All right, question number 13. The third last question of the quiz coming up on your screen now. चलो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था एंड क्योंकि मैंने बैटल ऑफ प्लासी एक्सप्लेन कर दिया तो ये और इजी हो गया। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में जब सिराजुद्दौला को हरा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर जहाँ पे जो नवाब होते हैं बंगाल के शुजाउद्दौला वो कंबाइन करते हैं अपनी फोर्सेस अवध के मीर कासिम के साथ एंड लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के साथ बैटल ऑफ बक्सर जिसमें उनकी हार हो जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है ऑफ द कंट्री। तो उसमें जीत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। विक्ट्री ऑफ मराठास इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज जो मराठास के साथ लड़ाई हुई थी वो थे एंग्लो मराठा वॉर्स। विक्ट्री ऑफ द फ्रेंच वो था बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश और मुगल एम्पायर तो यहाँ पे इन्वॉल्व है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबको ही आता था ये। थाला वॉज द फास्टेस्ट एज एंड इज ऑन फर्स्ट पोजिशन। 10,000 पॉइंट्स हो चुके हैं, क्या बात है। मेटल, कुकू, एजेंट शॉम्स, Shuriken, Adarsh, Sandy, Srishti, Sam, and Betelgeuse is also on the leaderboard. The second last question of our quiz, 14th question. Let's go for it. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ओह क्या बात है, 16 लोगों को आता था इसका आंसर। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1880s की बात है, ये भी एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट यस दैट इज द करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं टुवर्ड्स द क्विज लीडर बोर्ड। Shuriken bot has the fastest response. Thala is on first. Metal is on second. Agent Home, Shuriken, Cuckoo, Shrishti, Adarsh, Sandy, Betelgeuse, Sam. All right, let's go to the last question of the quiz. Easy question है मुझे याद है last वाला. So I'm expecting all of you to get this right. First president of the Indian National Congress. 19 people got this right. It was W.C. बैनर्जी, पूरा नाम है इनका उमेश चंद्र बैनर्जी, जिनको पहला प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेस्ड ऑन हिज सीनियरिटी। उसके बाद इलेक्शंस हुए एंड फिर दूसरे प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, बट फर्स्ट प्रेसिडेंट हम बोलते हैं W.C. बैनर्जी को of the Indian National Congress. And that brings us to the final leaderboard. Let's look at it. Bhaskar, another new name on the leaderboard. क्या बात है। Thala is the champion of this particular quiz. So Thala, please reveal your identity in the YT chat box. कि क्या है आपका असली नाम, so that we can congratulate you. बाकी you can congratulate Thala in the chat box as well. Major kudos to other people on the leaderboard. I'd like to take their names: Metal, Agent Holmes, Shuriken, Cuckoo, Shrishti, Adarsh, Sandy, Betelgeuse, Bhaskar, and everyone who made an appearance for a short while on the leaderboard, and everyone who participated in the quiz and at least got 5-6 questions correct. You guys played fantastically. थोड़ा सा टफ और एंड पे था क्विज, स्पेशली अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत टाइम से रिवाइज ना करी हो, बट यू गाइस प्लेड रियली रियली वेल एंड आई होप दिस वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आपको मजा आया हो क्विज में। प्रियांशी वॉज मेटल, वेल प्लेड। ठीक है, कुशाग्र वॉज शुरिकन, अर्शिता वॉज एजेंट थॉम्स होम्स, सॉरी। थाला कौन है?
अच्छा, तेजस was थाला. Okay, क्या बात है. Well played, Tejas. Congratulations to you. And I hope you guys had fun with the quiz. मजा आया होगा. ट्यूसडे को हम करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे एक क्विज. आप लोग रिवाइज करके आ सकते हो उसको. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडिया एंड इट्स डिप्लोमेसी. ठीक है जी. चलो, that's all for the day, guys. Thank you so much for participating. Do drop a like on the video to help with the engagement. Do drop comments if you have any queries, या फिर if you want to shower some praise on me. बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर लो अगर नहीं किया है तो, because we keep on having fun sessions, interactive sessions. That's all for the day. मिलते हैं अब मंडे को on the same time, 3 p.m. Till then, take care. Bye bye. Signing off.